Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is share-based payment. This topic is given in CMA final paper number 17, that is CFR, study note number 6, that is share-based payment. So first of all we will understand some theory part. In the recent times, different types of share plans and share options plans have become common feature of remuneration packages for senior executives, directors and other employees in the countries. Okay. Moreover, the shares and share options may also be used to pay suppliers for providing professional services. Okay. All these modes of payment are known as share based payment. Okay. तो शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है कि जो भी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन लोग को जो पैकेज, रेम्यूनरेशन पैकेज दिया जाता है, उसमें उन लोग को क्या है ना, शेयर प्लान्स दिया जाता है या फिर शेयर ऑप्शन प्लान्स दिया जाता है. तो मतलब उनका जो पेमेंट रहता है, रेम्यूनरेशन पैकेज होता है, वो कैश के बजाय, मतलब जो भी पेमेंट है वो कैश के इंस्टेड ऑफ कैश हम लोग कैसे करते हैं कि शेयर प्लान से या फिर शेयर ऑप्शन से हम लोग उनको रेम्यूनरेशन पैकेज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं. और इस जो भी हम लोग के प्रोफेशनल सर्विस सप्लायर्स होते हैं, उन लोग को भी जो पेमेंट किया जाता है वो शेयर ऑप्शंस के थ्रू किया जाता है, उसको हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं. ओके. So what is share based payment? The senior executives, directors and other employees of the company are paid by the company by way of share plans or share option plans. Okay. We'll discuss what are the types of or else what are the ways of share based payment. First of all, we'll understand this meaning. So executives, directors, employees are paid by the company through share plans or share option plans. Like that, professional service providers also get remuneration by way of share options, that is called as share based payment. In short, share based payment means what? Instead of paying cash, company gives shares options, share plans to their higher officers like senior executives, directors or else other employees and other professional service providers. उनको कंपनी क्या करती है, कैश के थ्रू पेमेंट करने के बजाय उनको शेयर्स प्लान्स दिया जाता है या फिर शेयर ऑप्शन दिया जाता है, उसको हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं. So we'll understand some other theory part which will help us to understand the illustrations. Okay. So share based payment, in that types or the ways of share based payment. Okay. तो हमारे पास क्या है ना कि 4 वेज है, उससे हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं. मतलब कंपनी शेयर बेस्ड पेमेंट कौन से वे से कर सकती है, तो ये 4 वे से कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ESOP मीन्स व्हाट? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान. We'll discuss in detail, these options we'll discuss in detail later. First of all, we'll understand the name and full form of that option. So ESOP, that is employee stock option plan. After that, ESPP, that is equity share purchase plan. Then SAR, that is stock appreciation right. Or else mixed plan or hybrid plan, means we can take a combination of any two प्लान्स. मतलब मिक्स प्लान और हाइब्रिड प्लान में क्या होता है कि हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का, फर्स्ट और सेकंड का, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन करके कंपनी वो शेयर बेस्ड पेमेंट का प्लान दे सकती है, बना सकती है, तो उसको हम लोग मिक्स प्लान या फिर हाइब्रिड प्लान बोलते हैं. सो दीज आर द टाइप्स और द वेज ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट. After that, some important terms we have to understand which will help us to understand the concept of share based payment. So vesting condition. Okay, vesting condition. अभी शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है ना कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट करना चाहती है, तो उसमें कंडीशन दी जाती है. मतलब सो एंड सो कंडीशन अगर एम्प्लॉय ने फुलफिल किया तो उसको शेयर बेस्ड पेमेंट हो जाएगा. ओके. So while giving option of share based payment, company may give some condition to that employee. So employee have to fulfill that condition. Thereafter he'll get the share based payment option. So what is vesting condition? See, the condition for which ESOP is given to employee. Okay. So majority of the time क्या होता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है. ओके. उसका मीनिंग क्या है वो सब हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बाद में हम लोग को ये मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा. ओके. सो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है, तो
वो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए वो प्लान अगर कंपनी देना चाहती है तो कंपनी एक कंडीशन रखती है एम्प्लॉय के सामने कि ये कंडीशन एम्प्लॉय को फुलफिल करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द वेस्टिंग कंडीशन? वेस्टिंग कंडीशन इज नथिंग बट द कंडीशन फॉर विच ESOP इज गिवन टू द एम्प्लॉय. ESOP मीन्स व्हाट? शेयर बेस्ड ऑप्शन इज गिवन टू द एम्प्लॉय. मतलब वो कंडीशन फुलफिल किया तो एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट मिलेगा, वो जो ऑप्शन है वो मिलेगा. नेक्स्ट, ग्रांट ऑफ ऑप्शन. ओके, द डेट ऑफ गिविंग ऑप्शन टू द एम्प्लॉय. जो ऑप्शन मतलब जो ऑफर हम लोग जिसको बोल सकते हैं वो कंपनी को जिस दिन पे दिया जाता है, जिस डेट पे दिया जाता है उसको ग्रांट ऑफ ऑप्शन बोलते हैं. ओके, द डेट एट विच कंपनी गिव्स ऑप्शन टू हिज एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट शेयर बेस्ड पेमेंट ऑफर. ओके, सो जो भी ऑफर कंपनी दे रही है शेयर बेस्ड पेमेंट का, फॉर एग्जाम्पल ESOP, तो वो ऑप्शन जिस दिन पे दिया जाता है वो डेट को हम लोग बोलते हैं ग्रांट ऑफ ऑप्शन. ओके, वेस्टिंग पीरियड. वेस्टिंग पीरियड मीन्स व्हाट? द पीरियड व्हेन वी फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन. वी मीन्स व्हाट? एम्प्लॉयज. ओके, सो वेस्टिंग पीरियड क्या होता है कि वो पीरियड जिसमें वो एम्प्लॉय वो कंडीशन फुलफिल करता है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इज गिविंग शेयर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन दैट इज ESOP. लेट्स टेक ESOP. So employee stock option plan is offering company to his employee. So condition is employee has to work for continuous 3 or 4 works. Okay, so 3 or 4 works, this is the period which we called as vesting period. Okay, तो कंपनी में क्या है ना कि कंडीशन क्या रखा है कि एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली 3 साल तक काम करना है. सो वो जो 3 साल का पीरियड है उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड. ओके, बिकॉज वो जो 3 साल का पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद ही वो कंपनी वो एम्प्लॉय को शेयर बेस्ड पेमेंट करेगी. मतलब वो जो ऑप्शन दिया है वो उधर यानी कि वो जो कंडीशन दिया है वो उधर फुलफिल होगा आफ्टर 3 ईयर्स. ओके, सो वो जो पीरियड रहता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये जो 3 साल का पीरियड रहता है उसको हम लोग वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं. ओके, सो वेस्टिंग पीरियड मीन्स व्हाट? द पीरियड व्हेन एम्प्लॉय फुलफिल वेस्टिंग कंडीशन. ओके, vest of option period. Okay, vest of option period means what? The period given to employees to exercise the option at exercise price. Okay, इसका हम लोग एक चार्ट बना के इजीली समझ पाएंगे कि क्या होता है ये सारे टर्म्स. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को थियरी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए. सो वेस्ट ऑफ ऑप्शन क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल 3 इयर्स तक कंडीशन दिया है, मतलब 3 इयर्स तक काम करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तो उसको शेयर बेस्ड पेमेंट किया जाएगा. सो अभी फॉर एग्जांपल आज के डेट पे 3 इयर्स कंप्लीट हो रहा है, तो आज के डेट पे 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली जो एम्प्लॉय है वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता ना, तो उसको थोड़ा टाइम पीरियड दिया जाता है. से 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसा कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है. तो वो टाइम पीरियड में वो जो एम्प्लॉय है वो उसका ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट ऑफ ऑप्शन. ओके, see for example today the condition is fulfilled by the employee, that 3 years condition is fulfilled by the employee. So he cannot purchase that shares or else exercise his option at that point only. मतलब आज उसका जो उसका हो रहा है, मतलब उसका जो ऑप्शन है वो आज एक्सरसाइज करना है, तो एक दिन में तो एक्सरसाइज नहीं होता है ना वो ऑप्शन. सो जो पीरियड दिया जाता है उसको वेस्ट ऑफ ऑप्शन बोला जाता है. So company may give 2 or 3 months period to that employee to exercise the option given to him. So that period is called as vest of option period. Okay, last one, that is option lapse. Okay, option lapse. Option में lapse if the employee will not be able to exercise the option. See, if the employee will not exercise the option during the vest of option period, then the option will lapse. मतलब एम्प्लॉय को बोला है कि आज के डेट पे तुम्हारा 3 इयर्स कंप्लीट हुआ तो तुम्हारा कंडीशन फुलफिल हो गया. सो नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में तुम्हारा जो भी पूरा प्रोसीजर है शेयर बेस्ड पेमेंट का वो कंप्लीट करो, तो फिर तुम्हारा ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा. लेकिन अगर कंपनी अगर एम्प्लॉय फेल हो गया वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने में 2 और 3 मंथ्स में, तो उसके बाद 2 और 3 मंथ्स के बाद क्या होगा? वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा. ओके, इफ द एम्प्लॉई विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ड्यूरिंग दैट वेस्ट ऑफ ऑप्शन पीरियड, सो दैट ऑप्शन विल गेट लैप्स, मीन्स इट विल बी कैंसल्ड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज लैप्स ऑफ ऑप्शन. ओके, सी
हम लोग क्या करेंगे, इधर चार्ट बना के जो भी हम लोग ने टर्म्स सीखे अभी वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे. सो विल डिस्कस ऑल दिस टर्म्स नाउ बाय प्रिपेयरिंग लाइक डायग्राम टाइप हम लोग प्रिपेयर करेंगे और हम लोग मतलब अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टर्म्स क्या है. सी, वेस्टिंग कंडीशन क्या होता है, ग्रांट ऑफ ऑप्शन क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, वेस्ट ऑफ ऑप्शन पीरियड क्या होता है और लैप्स ऑप्शन लैप्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग. सो हम लोग इधर लर्न करेंगे. सी, एक एम्प्लॉय है. सी, देर इज़ वन एम्प्लॉय मिस्टर ए. मिस्टर ए इज़ द एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड. ओके, XYZ लिमिटेड में ये मिस्टर ए है, वो एम्प्लॉय है. तो XYZ ने मिस्टर ए को ऑप्शन दिया है, मतलब हम लोग जो शेयर बेस्ड पेमेंट सीख रहे हैं वो शेयर बेस्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया है XYZ लिमिटेड ने मिस्टर ए को, यानी कि ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का. ओके, सो आज के डेट पे मतलब ये पॉइंट पे उसको ऑप्शन दिया है. ओके, ये पॉइंट पे ऑप्शन दिया है और कंपनी ने बोला है कि जो भी कंडीशन है वो क्या है कि ये जो मिस्टर ए है उसको कंटिन्यूसली 3 इयर्स तक कंपनी में ही काम करना पड़ेगा. वो इधर का जॉब छोड़ के नहीं जा सकता. अगर वो छोड़ के चला गया तो ये ऑप्शन उसको नहीं मिलेगा. सो व्हाट इज़ वेस्टिंग कंडीशन? वेस्टिंग कंडीशन इज़ मिस्टर ए हैज़ टू वर्क फॉर कंटिन्यूस 3 years in XYZ Limited. So this is the point at which XYZ Limited is giving option to Mr. A. Vesting condition is what? Mr. A has to work for continuous 3 years, next 3 years in XYZ Limited. So this is the point at which Mr. A is getting option. So this point is called as grant of option. This point is called as grant of option. Okay, because option is granted by XYZ Limited to Mr. A. So this point is called as grant of option. Okay, after that 1 year complete हो गया इधर, उसके बाद 2nd year complete हो गया इधर, उसके बाद 3rd year इधर complete हो गया. ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन, मतलब आज के दिन पे उसको ऑप्शन दिया गया. उसके बाद क्या हुआ, 1st year कंप्लीट हो गया, 2nd year कंप्लीट हो गया, 3rd year कंप्लीट हो गया. ओके, सो हियर कंडीशन फुलफिल हो गया, क्योंकि क्या बोला था कंडीशन में कि 3 years तक मिस्टर ए को काम करना पड़ेगा XYZ लिमिटेड में. सो 1st year, 2nd year, 3rd year. सी, 1st year, 2nd year, 3rd year, 3 years तक मिस्टर ए ने XYZ लिमिटेड में काम किया है. सो इधर क्या हो गया ना कि 3 years कंप्लीट हो गया. ओके, सो इधर कंडीशन फुलफिल हो गया. सी कंडीशन फुलफिल हो गया. अभी क्या है ना कि ये पॉइंट पे मतलब ये डेट पे कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये जो मिस्टर ए है उसको ये ऑप्शन मिल गया. सी, ऑप्शन में क्या था कि XYZ लिमिटेड ने क्या बोला कि अगर मिस्टर ए ने कंटिन्यूस 3 years तक कंपनी में काम किया, जॉब नहीं छोड़ा, कंटिन्यूस 3 years तक काम किया, तो XYZ लिमिटेड 1000 शेयर्स देगी मिस्टर ए को एट द रेट ऑफ ₹100. मार्केट रेट कुछ भी होने दो, मार्केट रेट कुछ भी होने दो. ओके, XYZ लिमिटेड मिस्टर ए से ओनली ₹100 पर शेयर लेगी. ओके, पर शेयर लेगी. तो इसको हम लोग बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए जो भी कंडीशन है वो. ओके, so Mr. A will get 1000 shares from XYZ Limited at the rate of ₹100 per share, even though market rate is higher than ₹100. Okay, so this is the option. दिस इज़ द ऑप्शन. इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन दिया गया है मिस्टर ए को. ओके, सो ये डेट पे कंडीशन तो फुलफिल हो गया. कंडीशन, व्हाट वाज द वेस्टिंग कंडीशन? वेस्टिंग कंडीशन वाज Mr. A has to work for continuous 3 years in XYZ Limited. So Mr. A has completed vesting condition. This is the grant of option. This date was the grant of option. This is the what was the vesting condition? Vesting condition was Mr. A has to work for continuous 3 years. So we have understood grant of option. After that we have understood vesting condition, that is 3 years period he has to work. After that this period is called as vesting period. Okay, so first, second, third, this year's period is called as vesting period. So we have understood vesting condition. After that we have understood grant of option point, that is date. After that we have understood vesting period. Okay, first, second, third year is called as vesting period. Now we have to understand vest of option period and option lapse. Okay, so here we understood that Mr. A has fulfilled the condition
दैट इज़ वेस्टिंग कंडीशन हियर। सो आज के डेट पे अगर मतलब ये डेट पे क्या हुआ ना कि मिस्टर ए ने कंडीशन फुलफिल किया तो इमीडिएटली वो पे नहीं कर सकता ना कंपनी को, बिकॉज 1000 शेयर्स उसको मिल रहा है 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना अमाउंट हो गया 1 लाख। ओके 1 लाख अमाउंट मिस्टर ए XYZ लिमिटेड में पे करेगा और उसको 1000 शेयर्स मिलेगा। तो एक दिन में तो 1 लाख नहीं उसके पास आ सकता है ना, पेमेंट के लिए कुछ तो टाइम देना चाहिए ना। सो इसीलिए कंपनी क्या बोली, कंपनी दे रही है 3 मंथ्स का टाइम। ओके ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना दे रहा है। सो ये जो पीरियड है इतना पीरियड कंपनी दे रही है ये जो पेमेंट वो सब करने के लिए। ओके सो ये जो पीरियड है उसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट ऑफ ऑप्शन पीरियड, वेस्ट ऑफ ऑप्शन पीरियड। ओके सो here Mr. A has fulfilled the condition of option, that is vesting condition he has fulfilled. Now at this point Mr. A can exercise his option, but he has to pay rupees 1 lakh to the company because he is getting 1000 shares and at the rate of 100 per share. This is just an example. So Mr. A has to pay 1 lakh rupees to XYZ limited. So he cannot arrange in 1 or 2 days. So that's why company may give 2 or 3 months period to Mr. A to fulfill this option, to exercise this option. Okay, to pay 1 lakh rupees to XYZ limited. So this period after fulfilling the condition and up to the completion of transaction, this period is called as vest of option period. That can be 2 months, 3 months, whatever, depending upon the company. So this period is called as vest of option period. Okay, so we have understood vest of option. Now option lapse. See, at this point if Mr. A will not be able to pay to the company, means he will not be able to exercise his option at this point, that is end of this vest of option period. So he will not be able to exercise his option. So here option lapse. Okay, अगर केस एक केस में क्या हो गया कि अभी ये जो मिस्टर ए है उसको कंपनी ने 3 मंथ्स का पीरियड दिया पेमेंट वो सब करने के लिए, उसको हम लोग वेस्ट ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। ओके 3 मंथ्स के बाद भी अगर मिस्टर ए उसका जो भी ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाया, मतलब ये 1000 शेयर्स नहीं ले पाया एट द रेट ऑफ ₹100, तो ये केस में क्या हो गया, उसका ऑप्शन लैप्स हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। ये इधर 3 मंथ्स खत्म हो गया ना, तो इधर उसका ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, मतलब उसके बाद उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके so here his option will get lapsed. So here we have understood all the concepts. So I hope आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। so ये सब हम लोग का मतलब टर्म्स हम लोग को पता होना चाहिए अगर शेयर बेस्ड पेमेंट के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दैट टर्म्स पार्ट। उसके बाद अभी है सी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग को याद रखना है। सी ESOP, that is employee stock option plan. See here we are taking ESOP, that is employee stock option plan. जो भी शेयर बेस्ड पेमेंट का ऑप्शन है वो ज़्यादातर ESOP में दिया जाता है, सो उसको ही हम लोग मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट को ही हम लोग ESOP बोलेंगे। ओके सो ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट का जो भी प्लान दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, दैट इज ESOP इज़ एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट अ ऑब्लिगेशन। ओके ये जो है शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए जो ऑप्शन दिया जाता है दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इट इज़ जस्ट ऑप्शन, इट इज़ नॉट अ ऑब्लिगेशन। ये एक ऑप्शन होता है, मतलब कंपनी एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है कि ऐसा ऐसा ऑप्शन हम लोग रख रहे हैं, आप लोग को पसंद है तो आप लोग येस बोलो, पसंद नहीं है तो आप लोग नो बोलो, आपके ऊपर कुछ भी कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। ओके सो ESOP is an option, it is not an obligation because company is giving option to the employees, it's not compulsory to the employees to get this option. okay so employees को ये कंपलसरी नहीं है कि ये ले ही लेना है, आपको ये ऑप्शन लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ ऑप्शन, इट इज़ नॉट अ ऑब्लिगेशन, कंपल्शन नहीं होता शेयर बेस्ड पेमेंट में। ओके वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सी ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या हुआ था, 1000 शेयर्स था, ₹100 ये कंपनी ने ऑफर किया हुआ प्राइस है। ओके लेकिन अगर मार्केट प्राइस, सी मार्केट प्राइस अगर हम लोग का ₹1000 है, ओके सी 1000 शेयर्स कंपनी दे रहा है,
मिस्टर ए को, हर एक एम्प्लॉय को दे रहा है, सी 1000 शेयर्स दे रहा है, और उसका जो रेट है, मतलब ऑप्शन का जो वैल्यू बोला है, मतलब कंपनी कौन से रेट पे देगी, ₹100 पर शेयर कंपनी देगी मिस्टर ए को, यानी कि एम्प्लॉय को। लेकिन मार्केट प्राइस कितना है, 1000। मतलब अगर कंपनी ने ये शेयर्स एम्प्लॉय को नहीं दिया और मार्केट में उसको पब्लिक को दिया, तो कंपनी को कितना मिलेगा पर शेयर, 1000 मिलेगा। लेकिन कंपनी अपना नुकसान करके अपने एम्प्लॉय को 100 रुपीज़ के हिसाब से दे रही है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या हो गया, मार्केट प्राइस माइनस exercise price. This is the exercise price because employee will exercise his option at this price only. So this is called as exercise price and this is the market price. 1000 shares are given by the XYZ Limited to Mr. A at a rate of ₹100, but market price is 1000. So in this case, company is getting loss of 900 because in the market company will get 1000, but company is giving at 100 to his employees. So difference between market price and this exercise price is loss to the company. That loss is called as value of option. Okay. So जो loss हो रहा है कंपनी को 900 का, उसको हम लोग बोलेंगे value of option. C. Value of option means market price minus exercise price. Okay. एग्जाम्पल तो हम लोग ने समझ लिया है, दैट इज 1000 शेयर्स कंपनी देने वाला है एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर, एंड मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस से 1000 है। ओके, एग्जाम्पल है ये 1000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस इज ₹1000। ओके, सो अगर कंपनी ने मार्केट में शेयर्स सेल किए होते तो 1000 मिलता, इशू किए होते तो 1000 मिलता पर शेयर। लेकिन कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉय को दिया, एक्सरसाइज प्राइस का रखा 100। सो कंपनी का वैल्यू ऑफ ऑप्शन यानी कि लॉस, एक तरफ से क्या होता है, लॉस ही होता है ना, सो दैट इज 900। सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट प्राइस दैट इज 1000, इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल है, and exercise price is 100. So difference between both of this is called as value of option. Value of option हम लोग का आएगा 900. Okay, it is a loss to the company because company will get 1000 from the market, but it is getting 100 only from his employees. So company is getting loss of 900. So that loss is called as value of option. Okay, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ये लॉस एक्चुअल में लॉस नहीं होता है कंपनी को, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे शेयर बेस्ड पेमेंट का जो ऑप्शन है, ऐसे इस वो सब ऑप्शन दे के कंपनी क्या करता है कि लॉयल्टी अर्न करता है अपने एम्प्लॉय का, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट, मतलब 1000 का शेयर 100 रुपीज़ में अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो केस में एम्प्लॉय का फ़ायदा है, क्योंकि एम्प्लॉय को बहुत सस्ते में मिल रहा है शेयर। ओके, सस्ते में मिल रहा है और एम्प्लॉय विल बी अ ओनर ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर होते हैं ना कंपनी के, तो एम्प्लॉय का दो तरफ से फ़ायदा है। सी, एम्प्लॉय इज गेटिंग शेयर्स एट अ मच लोअर प्राइस दैन द मार्केट प्राइस एंड ही विल बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मतलब क्या, ओनर, equity shareholders will be the owner of that company. So employee will become a shareholder after getting this option. So employee will get two benefits, that shares, he will get the shares at a lower price and he will be the owner of the company because he will be the shareholder of the company. So ये जो है वो लॉस नहीं हो सकता कंपनी को असल में देखा जाए तो, क्योंकि एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, कंपनी शेयर्स दे रहा है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय लॉयल रहता है कंपनी के साथ, एम्प्लॉय जल्दी छोड़ के नहीं जाते या फिर उसके लाइफ टाइम तक वो उधर ही काम करता रहता है। सो उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का। ओके, बाय गिविंग सच काइंड ऑफ ऑप्शंस कंपनी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़. So this may not be directly loss to the company, but this is the value of option. Okay, so after that, see, if the fair value of option and intrinsic value of option is given, then fair value is preferred. Okay, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि फेयर वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दिया जाता है ऑप्शन का। अभी ऑप्शन का मतलब क्या, शेयर का। ओके, हम लोग को पता है, हम लोग ने वैल्यू ऑफ शेयर्स हम लोग ने पढ़ा है टॉपिक, तो उसमें व्हाट इज़ फेयर वैल्यू, व्हाट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, सब हम लोग ने पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा उधर भी हम लोग वैसे ही करते थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू में हम लोग को हमेशा क्या प्रेफर करना चाहिए, हम लोग को प्रेफर करना चाहिए फेयर वैल्यू। ओके, व्हेनेवर फेयर वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन,
Okay, so in that case we have to prefer that is fair value. So fair value is preferred. Okay, if the fair value is not given in the question, then we will calculate intrinsic value. Okay, sometimes they will not get they will not give fair value or intrinsic value. So in that case we have to find out intrinsic value. Okay, so क्वेश्चन में अगर नहीं दिया जाता है फेयर वैल्यू तो हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है. ओके, सो इधर से जो भी पार्ट है वो हम लोग के इलुस्ट्रेशंस कैसे सॉल्व करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फ्रॉम हियर we will understand how to solve the illustrations. All this information is helpful for the solving practical problems. See, calculation of expenses of each year. Okay, formula, we have to calculate expense of each year in the practical problem. So formula is, see, formula is normal. We have to just understand the formula. See, number of employees multiplied by option per employee, then multiplied by value of option. Value of option means what? Market price minus exercise price. So that's called as value of option. After that expired period और वेस्टिंग पीरियड. ओके, सो इधर हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ है वो लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है ऑप्शन पर एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय को कितना दिया जाएगा, कितना शेयर्स दिया जाएगा. ऑप्शन पर एम्प्लॉय यानी कि शेयर्स पर एम्प्लॉय. ओके, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मतलब कौन से रेट पे कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रही है उसको हम लोग वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलेंगे. सी, वैल्यू ऑफ ऑप्शन डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल 100, 200 ऐसा अगर हम लोग ₹30, 20 ऐसा दिया है तो डायरेक्टली हम लोग लेंगे. और एल्स अगर हम लोग को मार्केट प्राइस दिया है और एक्सरसाइज प्राइस दिया है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस उसको हम लोग वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम लोग को डायरेक्टली दिया हुआ होता है. एक्सपायर्ड पीरियड मतलब 3 इयर्स का कंडीशन है तो उसमें अगर हम लोग फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं तो फर्स्ट यानी कि 1/3, सेकेंड ईयर का कर रहे हैं 2/3, थर्ड ईयर का कर रहा है 3/3. ओके, so here we have to take this formula, that is number of employees multiplied by value of option, option per employee means what? Share per employee multiplied by value of option, which will be given in the question, and expire period. So if we are doing for first year, then 1/3 years, second year then 2/3, and if third year then 3/3. Okay, how to take values? Okay, for वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स. ओके, फॉर एग्जांपल वेस्टिंग पीरियड अगर 3 ईयर है तो हम लोग को वैल्यूज कैसा लेना है वो हम लोग देखेंगे. सी, फर्स्ट ईयर में क्या है ना कि ऑल 3 ईयर्स का एस्टिमेटेड वैल्यू. ओके, बिकॉज वी आर इन फर्स्ट ईयर सो वी रियली डोंट नो दैट हाउ मच वैल्यू विल बी इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. पहले ईयर में हम लोग को पता नहीं है ना कि सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या होगा, तो उसको हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे. ये सारी चीज़ें हम लोग ने एक दो क्वेश्चन किया ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे. अभी थोड़ा सा नहीं समझा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन करते समय आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी. सो फर्स्ट ईयर में हम लोग को एस्टिमेटेड वैल्यू ही लेना है. सेकेंड ईयर में हम लोग को एक्चुअल वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर का एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि हम लोग सेकेंड ईयर में है तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, सो उसका एक्चुअल लेना है. सेकेंड और थर्ड का नहीं पता क्या होने वाला है तो उसका हम लोग एस्टिमेटेड लेंगे. ओके, एंड थर्ड ईयर में क्या है ना कि सारे ईयर्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो हम लोग सारे वैल्यूज़ एक्चुअल वैल्यूज़ लेंगे. ओके, सो इन द फर्स्ट ईयर वी हैव टू कंसिडर एस्टिमेटेड वैल्यू, इन द सेकेंड ईयर वी हैव टू कंसिडर actual value for the first year, and for second and third year estimated value, and in third year we have to consider actual value for all 3 years. Okay, now in the earlier part we have understood the ways or the types of share based payment, that is ESOP, ESPP and SAR and mix and hybrid plan. So this is not a plan, this is just a combination of second third second like that. मतलब इसका जो भी है ये 3 ऑप्शन है उसका कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग मिक्स और हाइब्रिड प्लान बोलते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस 3 ऑप्शंस. ओके, सो इधर मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिखा है कि क्या होता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. सी, here employee will get option to purchase the shares at a price lower than the market price after fulfilling the vesting condition.
सो इसमें क्या है ना कि एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाता है कि वो परचेस कर सकता है कंपनी के शेयर्स लोअर प्राइस पे एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस, अगर उसने वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल किया तो. सो एम्प्लॉय हैज़ टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन टू गेट this option to purchase the shares at a lower price than the market price. Okay, so condition, for example हम लोग condition क्या होता है वो देखेंगे. Okay, so this is the example of the vesting condition. Okay, the employee will get the ESOP if he will work for the company for continuous time period that is 3 years. कंडीशन क्या हो सकता है कि कंपनी में एम्प्लॉय को 3 साल तक कंटिन्यूसली काम करना है, जॉब छोड़ के नहीं जाना है. सो ये उसका कंडीशन हो सकता है. अगर एम्प्लॉय ने ऐसा किया, 3 साल तक काम किया, तो उसका कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा, ESOP ऑप्शन मिलेगा. सी, ESOP इज इक्विटी सेटल ट्रांजेक्शन. ESOP ये क्या है कि उसमें क्या, एम्प्लॉय स्टॉक यानी कि क्या हम लोग शेयर्स बोलते हैं ना उसको. सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये है, इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन है. मतलब इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसमें क्या ट्रांसफ़र होता है, शेयर्स होता है. सो उसको हम लोग, मतलब ये ट्रांजैक्शन सेटल किससे होता है, इक्विटी से होता है, इक्विटी शेयर्स से होता है. सो उसको हम लोग इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन बोलते हैं ESOP को. ओके, सो उसके बाद सी, एम्प्लॉय विल गेट शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट दैट इज़ आफ्टर 3 years. सो ESOP में क्या होता है कि एम्प्लॉय को शेयर्स मिलता है, लेकिन कब, कंडीशन फुलफिल होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 3 years के बाद. ओके, सो एम्प्लॉय विल गेट द शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन दैट इज आफ्टर 3 years. ओके, देयर इज नो लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ ESOP. सी, लॉक इन पीरियड क्या होता है कि अगर हमारे पास एक शेयर है तो उसको हम लोग सेल नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल 3 years तक. ऐसा अगर कंडीशन है उसको लॉक इन पीरियड बोला जाता है. मतलब शेयर है और 3 साल तक नहीं हम लोग सेल कर सकते, उसको लॉक इन बोला जाता है. लेकिन इधर तो हम लोग को शेयर ही 3 साल के बाद मिलता है, तो लॉक इन पीरियड कैसे आएगा. ओके, सो वी आर गेटिंग शेयर आफ्टर 3 years. सो हियर नो लॉक इन पीरियड in case of ESOP, that is employee stock option plan. Okay, now we have completed first way, that is employee stock option plan. I hope you are getting me. I am trying to explain you all these things in my own way. I really don't know you are getting me or not, but try to understand all these things. These things will not may not be coming, may not ask in the exam, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द नॉलेज पर्पज़. सो मुझे जितना पता है और जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ. तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझसे कितना हो सकता है उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो आई होप ये आपको बेनिफिशियल रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट वे और नेक्स्ट पार्ट इज़ इक्विटी शेयर परचेज प्लान. ओके, सो इसमें क्या होता है, सी, एम्प्लॉय विल गेट शेयर्स टुडे बट विद द कंडीशन दैट ही कैन नॉट सेल हिज शेयर्स अंटिल ही फुलफिल्स द वेस्टिंग कंडीशन. ओके, तो डिफरेंस क्या है ESOP में और ESPP में, कि ESOP में एम्प्लॉय को शेयर फ्यूचर में मिलता है आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन, मतलब आफ्टर 3 years. बट in case of ESPP, that is equity share purchase plan, employee will get share today. उसको आज ही शेयर दिया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या रखते हैं उन लोग, कंपनी क्या कंडीशन रखती है, he cannot sell that share until he fulfill the vesting condition. मतलब वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट होने तक वो शेयर सेल ही नहीं कर सकता एम्प्लॉय. ओके, सो कंपनी इज गिविंग शेयर्स टू द एम्प्लॉय टुडे, बट एम्प्लॉय कैन नॉट सेल दैट शेयर until he fulfill the vesting condition. Okay, सो डिफरेंस इतना ही है. मतलब कंडीशन तो दोनों जगह पे फुलफिल करना ही है, ESOP में भी और ESPP में भी. लेकिन ESOP में शेयर तो कंडीशन फुलफिल करने के बाद, यानी कि 3 years के बाद मिलेगा, फॉर एग्जांपल 3 years के बाद मिलेगा. और ESPP में क्या है कि शेयर्स आज ही मिलेगा, लेकिन वो सेल कब कर सकते हैं, वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 3 years के बाद. सी, देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड. ऑफकोर्स इधर लॉक इन पीरियड है क्योंकि हमारे पास शेयर हाथ में है, लेकिन हम लोग सेल नहीं कर सकते वो पीरियड कंप्लीट होने तक, या फिर वो कंडीशन कंप्लीट होने तक, उसी को तो लॉक इन पीरियड बोला जाता है. ओके, सो देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ ESPP, because employee is getting share today but he cannot sell it na, so that period is called as lock in period. In case of ESPP, that is 3 years, 4 years, 5 years etc. वो पीरियड जितना हो सकता है उतना उसको लॉक इन पीरियड, मतलब वेस्टिंग कंडीशन का पीरियड जितना होगा उसको ही हम लोग लॉक इन पीरियड बोलेंगे. ओके,
vesting condition period is called as lock-in period here. So it may be 3 years, 4 years, 5 years, etc. After that, last way, that is SAR, stock appreciation right. Okay, here company will pay money to employee instead of giving shares. So इसमें क्या होता है कि कंपनी अमाउंट ही दे देता है अपने एम्प्लॉय को शेयर्स की जगह पे. मतलब इधर क्या है, ये भी हम लोग का इक्विटी बेस्ड यानी कि इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन है, ESPP. लेकिन SAR में क्या है ना, वो कैश सेटल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपनी पे कर देता है एम्प्लॉय को इंस्टेड ऑफ गिविंग शेयर्स. सो इन दिस केस कंपनी विल पे मनी टू द employee instead of giving shares. So this is the cash settled transaction. Okay, so this is called as cash settled transaction. We'll understand through the example. See, if the company will ESOP to the employee, then employee will buy shares for rupees 100. Okay, and he will sell that share for 1000 in the market. See, हम लोग ने अभी अभी एग्जाम्पल देखा था कि अगर कंपनी 1000 रुपये का शेयर है, मतलब कंपनी का जो शेयर है उसका मार्केट में वैल्यू 1000 है, लेकिन वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को 100 पे दे रही थी. सी, इधर ही हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था ना कि मार्केट प्राइस 1000 है और कंपनी कितने पे दे रही है, 100 पे दे रही है. ओके, सो वही एग्जाम्पल हम लोग इधर देख रहे हैं कि कंपनी का जो भी शेयर है उसका मार्केट में वैल्यू 1000 है और कंपनी ने एम्प्लॉय को कितने पे दिया, 100 पे दिया. ओके, सो मिस्टर ए है, उसको एक शेयर मिला 100 रुपीज़ का इस शॉप में, तो उसने क्या किया, मार्केट में जाके उसको सेल किया. अभी मार्केट में मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 है. ओके, सो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 1000 मार्केट से मिल रहा है और उसने कंपनी को कितना दिया था, 100. सो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 900. ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल मिस्टर ए will get profit of rupees 900 because he has purchased, that is he is getting the shares from the company at a price of rupees 100 and he will share that he will sell that share in the market for 1000 because market value is 1000. So Mr. A is getting profit of 900. 1000 minus 100, he is getting profit of 900. So company क्या करेगी, वो जो प्रॉफिट है 900 वही उसको दे देगी. मतलब उसको शेयर्स देना है, उसके बाद वो मार्केट में जाके सेल करेगा, वो सब क्यों करना है. फाइनली कंपनी का नुकसान कितना हो रहा है, 900 का हो रहा है, क्योंकि अगर 1000 का शेयर कंपनी 100 में दे रही है एम्प्लॉय को, तो कंपनी का नुकसान कितना हो रहा है, 900 हो रहा है ना. यानी कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है, 900 है. तो कंपनी क्या सोचती है, वैसे भी हम लोग का नुकसान ही हो रहा है, मतलब हम लोग को पैसे तो कम आ रहा है ना. कंपनी सोचती है, कंपनी क्या करेगी, वही 900 खुद ही दे देगी अपने एम्प्लॉय को. ऐसा दिया तो भी सेम ही है, वैसा दिया तो भी सेम ही है. ओके, in this case company will think that, see, if company is giving shares at 100, then company is getting loss of 900 because market value is 1000 and company is getting 100 from the employee, so loss is 900. If ESOP option is given, so company is thinking that we are getting loss of 900, so we'll pay directly 900 to the employee. Okay, so here in case of stock appreciation right, company will pay that profit amount to the employee directly. Okay, तो वही इस एग्जाम्पल में दिया है कि ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 900. हम लोग ने देखा कि 1000 का मार्केट वैल्यू है और कंपनी को कितना पे किया था, 100 पे किया था. तो वो जो मिस्टर ए है हम लोग का एम्प्लॉई, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 900 का हो रहा है. तो एक केस में कंपनी क्या करेगी, सी, सो इंस्टेड ऑफ दिस company will pay net profit that is 900 directly to the employee in case of stock appreciation right. तो कंपनी क्या सोचेगी, उसको शेयर देना है, बाद में वो जाके मार्केट में सेल करेगा, उसको प्रॉफिट होगा 900 का. ये सब करने की बजाय हम लोग ही 900 उसको दे देंगे ना, तो ट्रांजेक्शन का जो भी नेट अमाउंट है वो तो परफेक्ट उतना ही सेटल हो जाएगा. सो कंपनी क्या करेगी, 900 डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय को दे देगी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. ओके, so here I have explained you all the necessary terms related to the share based payment. Okay, so we'll directly go for now examples which are given in your book. Okay, अभी हम लोग क्या करेंगे, बुक में जो भी एग्जाम्पल हम लोग को दिया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सी, एग्जाम्पल नंबर 1, that is
डी लिमिटेड ऑफर्स शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉई एज अ बोनस फॉर मीटिंग अ टारगेट. ओके, is it a share based payment transaction? Is it a इक्विटी शेयर, इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि डी लिमिटेड ने क्या किया, ऑफर किया अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस, एम्प्लॉयज़ को क्या ऑफर किया एज अ बोनस फॉर मीटिंग अ टारगेट. ओके, तो कंपनी क्या कर रही है, डी लिमिटेड क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय को ऑफर दे रही है कि ये तुम लोग है ना टारगेट अचीव करो तो तुम लोग को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा. ओके, बोनस में शेयर्स मिलेगा. ओके, सो कौन से भी वे से क्या हो रहा है, इधर एज अ रेम्यूनरेशन ही कंपनी पे कर रही है ना अपने एम्प्लॉय को, फ्री में नहीं दे रही है. क्योंकि क्या बोला है, टारगेट आप लोग अचीव करो उसके बाद आपको शेयर्स मिलेगा, एज अ बोनस मिलेगा. ओके, एज अ बोनस यानी कि क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन. जनरली बोनस कैसे देते हैं हम लोग को, कंपनी कैश में देता है. तो इसमें क्या हो रहा है, कैश के बजाय उन लोग शेयर्स में दे रहे हैं. तो कौन से भी वैसे रेम्यूनरेशन ही पे किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को. सो इसको हम लोग बोलेंगे येस, इट इज़ अ शेयर बेस्ड पेमेंट. सी, इन दिस केस कंपनी इज पेइंग टू द एम्प्लॉई टू मीट अ target. After meeting that target, company will give shares to the employees. Generally company pays the cash, but in this case company will not pay cash, company will give shares to the employees. Okay, so इसमें क्या हो रहा है, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं ना आफ्टर अचीविंग दैट टारगेट. सो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, शेयर्स थ्रू किया जा रहा है. सो इसको बोलेंगे येस, इट इज़ अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड दिस इज अ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन. बिकॉज इधर क्या दे रहा है कंपनी, शेयर्स दे रहा है. ओके, सो येस, it is a equity settled share based payment transaction as D issues its own shares against receiving of services from the employees. ओके, कंपनी फ्री में नहीं दे रहा है, कंपनी एज अ रेम्यूनरेशन दे रहा है. सो येस, इट इज़ अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड इट इज़ इक्विटी सेटल्ड ट्रांजेक्शन. सो हियर वी हैव completed example number 1. Now example number 2. Mr. Z is granted share option conditional upon completing 2 years service. Okay, how is the transaction recognized? Okay, सी इधर क्या हो रहा है, मिस्टर जेड को ऑप्शन दिया गया है कि कंडीशन क्या है कि 2 years का सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग को पता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है कि वेस्टिंग कंडीशन होता है. सो दिस इज द वेस्टिंग कंडीशन दैट मिस्टर जेड हैज़ टू वर्क फॉर द 2 years service. Okay, the transaction will be recognized as equity settled share based transaction because Mr. Z is granted share option. So share option means what? Equity settled share based payment transaction. The service from the employee will be assumed to be rendered in the future during the vesting period. ओके, सो इधर क्या है ना कि ऑप्शन उसको ग्रांट किया है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग ये 2 years का सर्विस उसको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने को मिलेगा. ओके, इन ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग इन द वेस्टिंग पीरियड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एज ग्रांट डेट विल बी रिकॉग्नाइज इन द प्रपोर्शन ऑफ द पीरियड एक्सपायर्ड टू द टोटल वेस्टिंग पीरियड. जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था उसमें हम लोग ने देखा था ना कि एक्सपायर पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड. सो वही हम लोग को करना है कि 2 years का वेस्टिंग पीरियड है, तो ये 2 years का जो भी हम लोग का एक्सपेंस हो जाएगा, कलेक्टिव एक्सपेंस होता है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको समझेगा. तो वो क्या है ना, हम लोग को 2 प्रपोर्शन में देना है जो भी 2 years है उसको. सो ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग को मतलब समझना चाहिए कि ये शेयर बेस्ड पेमेंट है कि नहीं है तो इक्विटी है कि कैश है. सो दिस इज द शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड दैट इज इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन. ओके, आफ्टर दैट मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ पी लिमिटेड एंड ऑल्सो द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड. ओके, सो मिस्टर एक्स ये एक एम्प्लॉय है पी लिमिटेड में और वो इक्विटी शेयर होल्डर भी है पी लिमिटेड में. P makes a right on equity and X receives his right. Is it a share based payment transaction? अभी हम लोग को पता है कि राइट इशू किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को दिया जाता है. ओके, सो ये किस में क्या है ना कि ये जो मिस्टर एक्स है, फॉर एग्जांपल ये मिस्टर एक्स है, वो एम्प्लॉय भी है और वो शेयर होल्डर भी है. ओके, पी लिमिटेड में. तो ये जो मिस्टर एक्स है उसको राइट इशू मिल गया पी लिमिटेड में से. राइट इशू तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है और शेयर बेस्ड पेमेंट हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा है, हम लोग ने एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ा है. सो उन लोग ने पूछा है कि ये जो राइट इशू है
जो मिस्टर एक्स को मिला है उसको हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं क्या? ओके, मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय एंड shareholder, equity shareholder of P Limited. Mr. X is getting right shares from the P Limited. So question is asking us about that whether it is a share based payment transaction or not. No, it is not a share based payment transaction because right issue equity shareholder को दिया गया है, एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं है. सी, नो, for the purpose of this standard, a transaction with an employee or other party in his or her capacity as a holder of equity instrument of the entity is not share based payment transaction. आपको अगर ये मीनिंग नहीं समझ में आया तो मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा कि सिंपली क्या लिखना है, नो इट इज़ नॉट अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन बिकॉज the right issue is given to the equity shareholder and share based payment is relates to the एम्प्लॉय. ओके, एम्प्लॉय के रिलेटेड होता है शेयर बेस्ड पेमेंट. सो ये जो राइट इशू है वो तो शेयर होल्डर को दिया है ना, तो उसका और हम लोग का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो इसको हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते. सो नो, आंसर इज नो. आफ्टर दैट, डी लिमिटेड ग्रांट्स 10 शेयर्स एप्रिसिएशन राइट, दैट इज SAR, जो हम लोग ने पढ़ा SAR. सो वो SAR का राइट है 10 शेयर्स का टू क्यू एन एम्प्लॉय, entitling him to receive cash payment for the increase in quoted price of D's shares from the exercise price of rupees 500 per share after 3 years. How the transaction should be recognized if it is assumed for the past services and for सर्विस इन द फ्यूचर 3 years. ओके, सो इसमें क्या बोला है कि अगर डी लिमिटेड ने SAR दैट इज शेयर एप्रिसिएशन राइट क्यू को दिया, दैट इज 10 शेयर्स के लिए, तो वो एम्प्लॉय है. तो अगर उसको हम लोग ये दे रहे हैं, मतलब SAR में क्या होता है कि कैश पेमेंट किया जाता है ना, कैश पेमेंट किया जाता है. सो उसमें अगर पास्ट सर्विस के लिए दिया है तो कैसा ट्रीटमेंट होगा और फ्यूचर के लिए दिया है तो कैसा ट्रीटमेंट रहेगा. ओके, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैश सेटल्ड है. ओके, सो वी हैव टू राइट दैट दिस ट्रांजेक्शन इज कैश सेटल्ड बिकॉज शेयर एप्रिसिएशन राइट, वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज शेयर एप्रिसिएशन राइट. सो उसमें क्या है ना कि कैश में सेटल किया जाता है. सो दिस ट्रांजेक्शन इज कैश सेटल शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दैट वेदर इट इज इक्विटी और कैश सेटल. सो वी हैव राइट दैट कैश सेटल ट्रांजेक्शन. आफ्टर दैट फर्स्ट आंसर दैट इज फॉर पास्ट ईयर के लिए अगर हम लोग SAR दे रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा. सी, फॉर द पास्ट ईयर द एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज इमीडिएटली द सर्विस रिसीव्ड एंड लायबिलिटी टू पे फॉर देम एट अ फेयर वैल्यू ऑफ द राइट ऑन द ग्रांट डेट. मतलब अगर SAR डिक्लेयर किया कि पास्ट सर्विस के लिए, मतलब लास्ट 3 years के लिए जिन लोग ने काम किया उनके लिए अगर SAR हम लोग दे रहे हैं तो वो केस में क्या है ना कि इमीडिएट पेमेंट किया जाएगा. सी, इमीडिएटली उन लोग को वो पेमेंट किया जाएगा एट अ फेयर वैल्यू पे. ओके, पास्ट ईयर्स के लिए दे रहे हैं मतलब आज के डेट पे उन लोग को पे करना पड़ेगा ना. सो वी हैव टू पे इमीडिएटली इफ़ इट इज़ फॉर पास्ट सर्विसेज एंड इफ़ इट इज़ फॉर फ्यूचर 3 years. तो किस में कैसे करेंगे. सी, फॉर फ्यूचर सर्विस ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ फेयर वैल्यू ऑफ द राइट ऑन द ग्रांट डेट प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड एक्सपायर्ड टू द टोटल वेस्टिंग पीरियड. मतलब जो हम लोग ने फॉर्मूला दिखा था ना कि एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड, वैसे करके हर एक साल का जो कॉस्ट फाइंड आउट किया जाता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वैसे हम लोग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका प्रोविजन करते रहेंगे इफ़ इट इज़ फॉर फ्यूचर 3 years. ओके, इफ़ इट इज़ फॉर फ्यूचर 3 years देन वी हैव टू मेक अ प्रोविजन प्रोपोर्शनेटली फॉर ऑल द 3 years. सी, 3 years बोला है ना, सो फॉर ऑल द 3 years, future 3 years we have to make a provision in the financial statements. Okay, so here we have completed all the 4 examples. Now last, that is 5 example. This is need not to do. ओके, ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें यही सारे कंडीशन डिटेल में दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. सी, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग 1-2 बार रीड करो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो इट इज़ बेटर टू लीव दैट एग्जाम्पल बिकॉज जो हम लोग के क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे टाइप के तो पूछेंगे नहीं. हम लोग को एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से आगे है.
वैसे टाइप के. सो अगर आप लोग ने एग्जाम्पल नंबर 5 छोड़ दिया तो भी चलेगा. ओके, so here we are leaving example number 5 because that is not that much important from the exam point of view. They have explained all these conditions in detail in example number 5. So we need not to do this example because we have to solve the practical problems which will be helpful from the exam point of view. Okay, so here we have completed all the theory part of share based payment. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.